Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सभी गाएंगे लाउडली. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Bhava Tume. Gauranida, 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 Jaya Gauranida. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol. Jai Gaur Premanande, Om Jnanatimirandasya, Jnananjana Salakaya, Chakshurunmitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam Garotu Achalam, Pangulangayate Girim, Yat Kripatamam Bande Shri Guru Dinataram. हरे कृष्णा. सबको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा. सही है, छोड़ दो.
क्या कुछ तो बोल रहे हैं। रहना तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा, ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही हरे कृष्णा। कूलर बंद कर दो। बेसिकली आज हमारा BL2 और BL3 कंबाइंड क्लास है और हम लोग बहुत समय के बाद एक कंबाइंड क्लास के लिए कहा में थे कि गुरु जी कब टाइम देंगे इस बेस बसाना प्राणेश्वर गुरु जी। बंद कर दो, बंद कर दो। तो बेसिकली हम सभी को पता है BL2 और BL3 क्लास जो है वो अलग अलग होता है, राइट। और कई वक्त BL2 में है, कई वक्त BL3 में है। लेकिन हम लोग जो है हिज ग्रेस बरसाना प्राणेश्वर गुरु जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत समय से कि गुरु जी थोड़ा टाइम दे दो हम लोग को। तो रोज ने कहा प्रभु आप लोग का टाइमिंग का जो है मेरा मैच नहीं करता, क्योंकि गुरु जी का एक्चुअली गुरु जी जो है 5:30 से 6:30 पहले कहीं और जाते हैं, शालीमार सिटी में आते हैं, वहाँ अपना समय देते हैं और देन यहाँ पे आते हैं। तो आप में से कई भक्त हैं जो गुरु जी को जानते होंगे। कौन कौन जानता है गुरु जी को? कौन कौन गुरु जी को जानता ही नहीं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहा है? एक दो एक और किस भक्त ने गुरु जी का क्लास लिया है पहले? किसने नहीं लिया? बिल्कुल ही नहीं लिया। 1 2 3 मतलब लगभग 8 9 10 भक्त हैं जो जानते नहीं गुरु जी को। तो मैं गुरु जी का बहुत छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग जो हमारे स्पीकर होते हैं तो अगर हम उनके बारे में सुन लेते तो हमारे में थोड़ा फेथ बढ़ता है, क्योंकि होता है कि हम लोग अभी भक्त वाली अवस्था में तो है नहीं कि कोई कृष्ण कथा सुनाएगा तुरंत मन लग जाएगा, तो हमें कनेक्ट करने के लिए हमें बताना पड़ता है। सो हिज ग्रेस बरसाना प्राणेश्वर गुरु जी जो है लगभग 10 साल से गुरु जी कनेक्टेड हैं। गुरु जी लगभग 10 साल पहले गुरु जी का दीक्षा हुआ था, 7 साल 7 साल में दीक्षा हुआ था। लगभग 10 साल से गुरु जी कनेक्टेड है और गुरु जी 10 साल से जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी IT कंपनी में कर रहे हैं। और गुरु जी ने हमारे साहिबाबाद के अंदर सही भक्तों को ट्रेन किया। लाइक जब इस्कॉन साहिबाबाद गुरु जी जब आए थे, मतलब यूथ फोरम के नाम पे जो हम सब भक्त हैं 5 से 8 10 भक्त हैं पुराने, हम लोग भक्त हैं, हम लोग कहीं ना कहीं चल रहे थे बस। लेकिन गुरु जी ने आए, गुरु जी ने हम लोग को ट्रेन किया शुरुआत से लेके अभी तक। और गुरु जी ने अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ से रेजिग्नेशन दिया है। गुरु जी को बड़ा सर्विस मिला है। गुरु जी शालीमार सिटी में जाते हैं, वहाँ पे जो गरज देखते हैं। तो गुरु से बहुत रिक्वेस्ट किया गया। गुरु जी एक्चुअली गुरु जी का बहुत मन करता है क्लास देने का, लेकिन हम लोग का टाइमिंग मैच नहीं करता है। तो गुरु जी वेल क्वालिफाइड व्हेन इट कम्स टू मेटेरियल प्रोस्पेरिटी और मेटेरियल लाइफ बोल लो आप। और गुरु जी स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अर्जुन प्रभु है, मैं हूँ। हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है, मैं आज तक बोलना जो ये कुछ सीखा गुरु जी सीखा है मैंने आज तक, है ना, और बहुत लोगों ने सीखा है। तो एक बार धन्यवाद करेंगे गुरु जी का बहुत तेज से लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू दीपक ब्रो। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? माइक सेट है? किस किस को पता है आज का टॉपिक क्या है? किस किस को पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता। चलिए कोई नहीं, पता चल जाएगा आज थोड़ी बहुत देर में। ज़बरदस्त टॉपिक है, आज सुनेंगे। तो अभी हम लोग है ना शालीमार सिटी में क्लास कर रहे थे। तो हम लोग है ना वहाँ उनका जो मंदिर है, ठीक है, अब ठीक है, गिर जाएगा ऐसे। अभी ठीक आ रही आवाज़? सबको ठीक आ रही है? तो हम लोगों ने है ना शालीमार सिटी का जो टेंपल है ना वहाँ प्रोग्राम करना स्टार्ट किया। तो जब मैं फर्स्ट डे गया तो वहाँ पे ऑलरेडी मंदिर के अंदर ना रामायण का पाठ हो रहा था। तो एक सज्जन है, भक्त है, तो वो लीड कर रहे थे रामायण के पाठ को। तो मैं माइक टेस्टिंग करने लगा अपना, तो थोड़ा गुस्सा हो गया। वो बोले कि अरे अभी सब बंद करो, ठीक है प्रभु, ये 6 बजे के बाद। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, है ना, कि अरे ऐसे कैसे धमका दिया इसने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? त्रिनादपि सुनी से ना तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदारी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 6 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये लेक्चर करना था, तो कथा करा हमने, है ना। वो प्रभु जी अपना रामायण का पाठ कंप्लीट करके ना और आके बैठ गया और वो सुनने लगे, है ना, कि ये बच्चा क्या बोल रहा है ना। मतलब बच्चा ही हूँ मैं, मेरे सामने बहुत बड़े हैं और बहुत मतलब विद्वान आदमी है, वो भक्ति में भी आगे हैं। तो लेक्चर पूरा होने के बाद उन्होंने मेरे से ना प्रश्न पूछे 2-3। तो मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा आप लोगों से, है ना, तो तैयार हो आप लोग? तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक्चुअली कुछ प्रश्न पूछा उन्होंने, तो मैं उसका आंसर कर रहा था।
तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन में ये बोला कि देखो शास्त्रों में ना, मैं एक्चुअली शास्त्रों का रेफरेंस दे रहा था कि भगवद गीता में देखो ऐसा है भगवान बोल रहे हैं। तो बोले कि शास्त्रों में ना बहुत चीज़ें ऐसा लिख दी जाती हैं, बट वो प्रैक्टिकल थोड़ी होता है, सच में थोड़ी होता है। तो थोड़ा वो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है। बोले कि देखो मैं हम रामायण पढ़ रहे हैं डेली, तो रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने ना जब राजा बने तो करोड़ों यज्ञ करे। तो करोड़ों यज्ञ थोड़ी करे होंगे प्रभु, वो थोड़ा उन्होंने ऐसा बोल दिया ना कि थोड़ा बताने के लिए कि ग्रेविटी लाने के लिए कि करोड़ों यज्ञ हुए, बट करोड़ों सच में थोड़ी हुए होंगे। तो बोले आप बताओ। तो मैंने बोला कि प्रभु जी देखो ऐसा है आप क्या बोलोगे वैसा इस पे। हाँ जय। और क्या नाम है आपका? घी ठाकुर। शब्द प्रमाण है, वो शास्त्रों में जो लिखा है वही सही है, और हम किसी और की उसमें आके कुछ बोल रहा है कि ऐसे नहीं है, तो उसको समझ नहीं आ सकता। शास्त्रों में लिखा है वही सही है ना। और कोई? तो वो बोले कि कैसे हो सकता है, भगवान करोड़ों यज्ञ कर दे रहे हैं, थोड़ी हो सकता है ऐसे। तो मैंने उनको कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस मैंने उनको एक स्टोरी सुनाया। मैंने उनको बोला प्रभु जी देखो ऐसा है, एक बार क्या हुआ कि दो व्यक्ति थे एक शहर में, एक मोची थे और एक पंडित थे, है ना। पंडित जी दिन भर मंत्र वंत्र करते थे, पूजा पाठ करते थे, और मोची का क्या काम था कि वो अपना जो उसका बिजनेस था कोबलर का, है ना, वो करता था, अपने जूते और चप्पल बनाता था, और उसको जब भी समय मिलता था ना वो भगवान का नाम जप किया करता था। जब भी समय मिल जाता था उसको बहुत प्रेम से नाम जप करता था, है ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता था। तो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि पहुँचे उनके पास, है ना। तो नारद मुनि ने दोनों को पूछा कि क्या पूछना है पूछो। तो पंडित जी बोले यही बता दो कि बस मुझे भगवत धाम का प्राप्त हो रहा है। नारद मुनि एक्चुअली बोले कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ मिलने, है ना, कुछ पूछना है भगवान से तो बताओ। बोले कि भगवान से पूछ लेना कि मुझे भगवत धाम का प्राप्त हो रहा है। पंडित जी बोले। फिर नारद मुनि मोची के पास गए, मोची से पूछे आप भगवान से मिलने जा रहा हूँ मैं, कुछ जानना है तो बताओ। मोची बोला कि भगवान से पूछ लेना कि मुझे भगवत धाम का प्राप्त हो रहा है। नारद मुनि बोले ठीक है पूछ लेंगे। तो नारद मुनि गए भगवान के पास वैकुंठ। तो जाने लगे, तो जाते जाते पूछे कि भगवान वो धरती पर दो व्यक्ति मिले थे, उधर पूछ रहे थे कुछ। भगवान पूछे क्या पूछ रहे थे? वो पंडित और वो पूछ रहे थे मोची की कब मिलेगा भगवत धाम। तो भगवान बोले कि उनको बोल देना कि ये जो पंडित है ना उसको तो अभी बहुत जन्म लगने वाले हैं, और जो मोची है ना मोची वो तो बस इसी जन्म में आने वाला है मेरे पास। तो नारद मुनि का दिमाग घूम गया, बोले कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो भगवान वो दिन भर पूजा करता है, मंत्र करता है, वो क्या क्या करता है, और वो मोची तो कुछ भी नहीं, तो थोड़ा बहुत है ना इधर उधर बस करता है, थोड़ा बहुत नाम जप करता है आपका। तो ऐसे कैसे आप बता रहे हो? कैंडिडेट तो पंडित जी लग रहे हैं, है ना, भगवत धाम प्राप्त करने के तुरंत। तो भगवान बोले नारद मुनि ऐसा बोलना, जब आप उनको आंसर करना ना वो पूछेंगे कि ये भगवान क्या कर रहे थे, तो बोलना कि भगवान है ना सुएं के छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो नारद मुनि बोले भगवान की माया भगवान ही समझ सकते हैं, है ना, ठीक है बोल देंगे, है ना, नारायण नारायण धरती पर आ गए। तो गए उसके पास, है ना। नारद मुनि बहुत एक्साइटेड थे कि यार क्या होने वाला है ना, कुछ अजीब सा ही कुछ आंसर है, कुछ अजीब सा ही कुछ बताना है, देखते हैं क्या होता है। तो पंडित जी के पास गए पहले, है ना। पंडित जी बोले कि नारद मुनि पूछा आपने मेरा प्रश्न भगवान से? बोले पूछा। बोले क्या बोले भगवान? बोले कि बच्चा तुम्हें तो अभी जन्म लगने वाले बहुत, है ना, अभी तुम्हारी तपस्या बहुत बची है पंडित बहुत नाराज़ हो गया। बोला अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ भगवान कर क्या रहे थे वैकुंठ में? तो नारद मुनि बोले भगवान है ना सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो पंडित गुस्सा आ गया, नारद मुनि अब पागल बना रहे हो आप हमारा, कैसी बात कर रहे हो, सुई की नोक से हाथी कैसे निकल जाएगा? नारद मुनि बोले अच्छा फिर मोची के पास गए। मोची के पास गए, मोची ने पूछा नारद मुनि आपने पूछा हमारा प्रश्न भगवान से? नारद मुनि बोले कि बेटा खुश हो जाओ, गुड न्यूज़ है, आप बस यही जन्म और फिर भगवत धाम प्राप्त करने वाले हो। तो नारद मुनि खुश हो गया, ओ सॉरी वो मोची खुश हो गया। फिर मोची बोला अच्छा भगवान कर क्या रहे थे वैकुंठ में? जिज्ञासा हुई। तो नारद मुनि ने बोला भगवान है ना सुई की नोक से है ना हाथी को निकाल रहे थे,
है ना। तो बहुत खुश हो गया, खुश हो के नाचने लगा मोची। बोला वाह क्या बात है भगवान, मतलब क्या क्या भगवान क्या कर रहे हैं ना, सुई की नोक से हाथी को निकाल दे रहे हैं। तो नारद मुनि बोले कि यार ये कैसे, वो तो पंडित आदमी था, शास्त्रों का ज्ञानी था, वो मतलब उसको कोई इस बात में विश्वास ही नहीं हुआ, नेगलेक्ट ही कर दिया उसने एक सिरे से, है ना। और मोची अज्ञानी आदमी एकदम से खुश हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे कैसे। तो मोची बोला कि नारद मुनि ऐसा है कि भगवान के लिए ना एक्चुअली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप वो बरगद का पेड़ देख रहे हो वहाँ पे, वो बरगद का पेड़ है ना, पहले छोटे से बीज में था। तो जो भगवान है ना, इतने बड़े से बरगद के पेड़ को एक छोटे से बीज में समाहित कर सकते हैं, तो उनके लिए एक छेद से हाथी को निकालना कौन सी बड़ी बात है ना। एक्चुअली इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। पंडित और मोची में डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ, फेथ है और सिंपल है, एग्जैक्टली। प्रभु जी ने एकदम हिटिंग द बुल साई, है ना। बोलते हैं ना वैष्णविज्म क्या है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो यही सिंप्लिसिटी है ना। सिंप्लिसिटी, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि सिंप्लिसिटी, प्रभु जी मैं बहुत सिंपल हूँ। कैसे सिंपल हो? प्रभु जी मैं तो बहुत सादा धोती कुर्ता पहनता हूँ और बहुत सादा खाना खाता हूँ, यही सिंप्लिसिटी। ये सिंप्लिसिटी नहीं है ना। ये एक्चुअली में कई बार हम ऐसी सिंप्लिसिटी रखते हैं, बट हमारे अंदर अभिमान हो जाता है ना, घमंड होता है इस चीज़ का। पता है मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं 3 बजे उठता हूँ, मैं बहुत सादा खाना खाता हूँ, दूध पीता हूँ। जैसे एक दूध पीने वाला ब्रह्मचारी था चैतन्य चरितामृत में ना, उसको घमंड हो गया था कि मैं दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, वो दूध पी के सर्वाइव कर रहा हूँ। तो दिस इज़ नॉट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या है? हमारे आचार्यों ने क्या बताया कि जो भगवान की वाणी और जो गुरुजन की वाणी है ना, उसको एज इट इज़ मान लेना, यही सिंप्लिसिटी है। तो जो मोची था ना, उसने मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स दिमाग नहीं लगाया कि कैसे, अच्छा वो सुई का नोक है, वो हाथी है, वो कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं सकता, नहीं। उसने सिंपल बोला कि गुरुजी ने बोला है, गुरुजी को भगवान ने बोला, दैट्स इट, ये सफिशेंट है मानने के लिए, है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो गुरुजी ने बोल दिया एक्सेप्ट, यही सिंप्लिसिटी है ना, यही सरलता है। इसी सरलता को क्या बोलते हैं? वैष्णविज्म, है ना। तो भगवान क्या है कि जब देखते हैं ना किसी व्यक्ति का हृदय सरल है ना, टेढ़ा नहीं है, तो भगवान क्या है? अट्रैक्ट होते हैं ऐसे वैष्णव से, है ना। बोलते हैं ना साधवा साधु भूषणम, एक साधु का जो भूषण है ना, गहना है, ये सिंप्लिसिटी होता है, ये सरलता का भाव होता है ना। तो इसके बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं शास्त्रों में, है ना, कि जब किसी वैष्णव ने ना सिंप्लिसिटी प्रदर्शित करा, इस सरलता प्रदर्शित करा, भगवान उससे बहुत अट्रैक्ट हो गए, है ना। और जो बड़े बड़े पंडित विद्वान थे, उनको बहुत बहुत ज्ञान था, बहुत तपस्या था, बट हृदय में सरलता नहीं थी, तो भगवान क्या उनसे कोशों दूर रहे, है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में कथा आती है रघुनंदन ठाकुर की, सुना आप लोगों ने किसी ने? तो रघुनंदन ठाकुर छोटे से थे, 4-5 साल के बालक थे। उनके पिताजी मुकुंद दत्त नाम था, शायद किसी को पता है क्या? मुकुंद दत्त प्रभु क्या नाम था रघुनंदन ठाकुर के पिताजी का? तो मुकुंद दत्त गौड़िया वैष्णव थे, है ना। तो क्या उनके पास एक विग्रह थे भगवान कृष्ण के, तो विग्रह की सेवा करते थे और डेली भोग लगाते थे लड्डुओं का, है ना। एक दिन क्या हुआ, मुकुंद दत्त को कहीं बाहर जाना पड़ा और अपने बेटे रघुनंदन ठाकुर को बोला, बेटा आज भोग लगा देना, है ना, भोग लगा के ही आना, ठीक है? तो बोले ठीक है पिताजी, भोग मैं लगा दूंगा। तो रघुनंदन ठाकुर है ना, छोटे से थे, हृदय में बहुत सरलता थी। लड्डुओं, माता जी ने लड्डू बना के दिया, बोला ले जाओ भोग लगा दो भगवान को, और वो गया और भगवान के सामने लेकर बैठ गए लड्डू। और भगवान क्यों खाएंगे, है ना। बट वो बहुत प्यार से भगवान को बुला रहे कि नहीं भगवान प्लीज़ आप खा लो, नहीं तो मेरी बड़ी पिट्टी होने वाली है आज घर पे, है ना। माता जी कहेंगी कि भोग नहीं लगाया, ऐसे ही आ गया, तब नकार आदमी है तू, है ना। तो बहुत प्यार से भगवान को भोग लगा रहे थे और भगवान सच में प्रकट हुए विग्रह से, है ना। और भगवान क्या लड्डू खा के फिनिश कर दिया। तो बहुत खुश हो गया कि थैंक यू भगवान, है ना, चलो मेरा अच्छा काम बन गया, आज मेरा पीठ बच गया, है ना। फिर वो गए और माता जी बोले लड्डू खाए, तो बोले वो तो भगवान खा गए, आप भी कैसी बात कर रहे हो यार, आप ही ने तो दिया था भगवान को खिलाने के लिए, खा के ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो माता जी बोली ये बच्चा मस्करी कर रहा है, लग रहा खा गया और दोस्तों में बांट दिया होगा। नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही हुआ, माता जी ने दिया और वो फिर फिनिश। अब मुकुंद दत्त को पता चला, मुकुंद दत्त को गुस्सा आ गया कि यार ये क्या मस्करी कर रहा है, एक दिन हुआ ठीक, दूसरे दिन। तो बोले बेटा लड्डू कहाँ जा रहे हैं? बोले पिताजी वो तो खा जा रहे हैं ना, भगवान कृष्णा खा जा रहे हैं। तो बोले कि अच्छा
बोले कि अच्छा ठीक है चल मैं देखता हूँ। अब बेटा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, है ना। बोले यार तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, लग नहीं रहा झूठ बोल रहा है, देखना पड़ेगा कर क्या रहा है ये। तो उनको ये नहीं था कि ये लड्डू भगवान खा रहे हैं, उनको ये था कि कहीं तो गायब कर रहा है, मेरे को चेक करना है गायब कहाँ कर रहा है ना। तो अगले दिन फिर बोले कि ठीक है आज भी तू लड्डू लेकर जा, है ना। तो वो बोले ठीक है आज भी कर देता हूँ सेवा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, भगवान आते हैं, है ना, खाते हैं। तो लड्डू लेकर गए, है ना। और फिर भगवान को भोग लगाना स्टार्ट करा उन्होंने। और फिर मुकुंद दत्त एक्चुअली छुप के देख रहे थे उस दिन, है ना, कि क्या होता है देखते हैं। तो जब देख रहे थे ना तो उन्होंने देखा कि रघुनंदन ठाकुर भोग लगा रहे हो, भगवान है ना विग्रह से प्रकट हुए और लड्डू खाने लग गए। तो मुकुंद दत्त एक्चुअली ना उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोक नहीं पाए, और वो छुपे थे फिर सामने आ गए, मंदिर में अंदर आ गए ना। तो भगवान है ना वो आधा लड्डू खाते हुए फ्रीज हो गया, उनका विग्रह ऐसे ही फ्रीज हो गया वहाँ पे, हाथ में आधा लड्डू लेकर। तो कोई पुरानी बात नहीं है, 500 साल पुरानी बात है। और जो विग्रह था ना वो लगभग 1980s तक बंगाल के एक मंदिर में था, ऐसे ही भगवान के विग्रह आधे लड्डू के साथ। बट 1980s के बाद किसी ने चुरा लिया उसे, है ना, नहीं तो तब तक वो दर्शन लोगों को होते थे ऐसे ही, है ना। तो मुकुंद दत्त में और रघुनंदन ठाकुर में क्या डिफरेंस था। इवन तो मुकुंद दत्त भी बहुत भगवान के चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य थे, है ना, बहुत उच्च कोटि वैष्णव थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली एक बार पूछा मुकुंद दत्त को, रघुनंदन ठाकुर मुकुंद दत्त मिलने आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि मुकुंद दत्त ये बताओ कि आप दोनों में बाप कौन है। तो मुकुंद दत्त बोले यही बाप है मेरा क्यों, कि भक्ति में वो आगे है ना, भक्ति में वो आगे है। सीनियोरिटी कैसे डिसाइड होता है। अब प्रभु जी ने बोला आप 10 साल से, है ना भक्ति में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीनियर हूँ सब आप सब भक्तों में। हो सकता है कोई 2 साल 3 साल से हो, बट उसका भगवान के प्रति भाव अच्छा है, भगवान के प्रति आकर्षण है ना, तो हो सकता है वो मेरे से सीनियर होगा भक्ति में, है ना। तो मुकुंद दत्त में और रघुनंदन ठाकुर में क्या डिफरेंस था। सरलता का भाव था, है ना। मुकुंद दत्त के अंदर ये रहा कि विग्रह है क्यों खाने आएगा, है ना, हमें तो भोग लगाना है ना, हम भोग लगा देंगे, है ना, सारे मंत्र पढ़ देंगे 3-3 बार, है ना, भगवान खा लेंगे, खाना होगा तो हमने तो फॉर्मेलिटी कर दिया। बट रघुनंदन ठाकुर को क्या था, फर्म फेथ था, पूरा विश्वास था, है ना, कि गुरुजन ने बोला है, शास्त्रों में बोला है कि भोग लगाओ तो भगवान खाने आते, तो खाने आएंगे ना, क्यों नहीं आ रहे हैं। ये क्या है, एक्चुअली यही सरलता है ना गुरुजन के शास्त्रों की वाणी में पूरा पूरा फेथ होना। बट हमारे अंदर हम क्या बहुत टेढ़े आदमी हैं, है ना, हम बहुत दिमाग लगाते हैं, है ना, एक्चुअली हम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत दिमाग लगाते हैं। नहीं नहीं अच्छा बोला है लेकिन ऐसा होता थोड़ी है ना, भगवान खा लेते होंगे, कहाँ खाते होंगे यार, वो तो वहाँ बैठे हैं, बोल दिया चलो लगा दो। बट नहीं, सरलता यही है कि अगर बोला है भोग लगाएंगे तो भगवान खाएंगे तो खा रहे हैं, है ना, इसमें कोई फिर नो इफ नो बट है ना। तो हम एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये टॉपिक में ही है ना, मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। तो सरलता का जब भाव होता है ना हमारे हृदय में, तो भगवान एक्चुअली हमारे से क्या है, आकर्षित होते हैं और हमारे साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है ना वो करते हैं। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, है ना। चैतन्य चरितामृत में ही एक कथा आता है, कोला बेचा श्रीधर का, सुना आप लोगों ने। हाँ सुनना है, बोलिए हरि बोल। तो एक्चुअली कोला बेचा श्रीधर भी ऐसे ही थे ना, बहुत सरल हृदय था उनका, है ना, भगवान उनको बहुत पसंद करते थे बहुत। बट उनका आदान प्रदान थोड़ा अलग तरीके का था, है ना। तो कोला बेचा श्रीधर है ना बहुत गरीब आदमी थे, और उनका क्या व्यवसाय था, वो केले के पत्ते है ना वो बेचा करते थे, और या फिर उसके पत्ते का दोना बना के बेचा करते थे ना। तो थोड़ा बहुत पैसा उनको मिलता था, उससे आधे पैसे से गंगा जी की सेवा करते थे, है ना, बाकी अपने लिए कुछ बचा लिया वैष्णव के लिए, है ना, ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है वो। तो चैतन्य महाप्रभु है ना उनके पास जाया करते थे और उनके साथ झगड़ा करते थे, कहते थे श्रीधर है ना तू लोगों को लूट रहा है, कितने का है ये तेरा दोना, ये पत्ता कितने का है। कहते थे 1 टन, एक जो भी इस टाइम करेंसी चलती हो, है ना, एक हाँ 1 आना 8 आना जो भी बोलते होंगे, ये 2 आने का है। कहते थे लूट रहा है श्रीधर तू सबको, 2 आने का है, 1 आने का आता है, ये लूट रहा है ना, ऐसे। तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं महाप्रभु ये 2 ही आने का है। नहीं नहीं लूट रहा है, नहीं लेंगे तेरे से, जा हट, ऐसे करके। तो भगवान का ऐसे ही आदान प्रदान उनके साथ है ना। और ये एक्चुअली ये दोनों ही इंजॉय करते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु इसको एंजॉय करते थे और कोला बेचा श्रीधर भी इसको बहुत ज़्यादा
एंजॉय करते थे, वो इंतज़ार करते थे भगवान आज कब आएंगे मेरी ठेली पे, मेरे साथ झगड़ा करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे मेरे साथ, है ना। तो ये मतलब बहुत ही मधुर संबंध था। कोलाबेचा श्रीधर को कुछ दिनों बाद पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं संन्यास लेने। उस टाइम निमाई पंडित थे वो, है ना। तो निमाई पंडित संन्यास लेने जा रहे हैं, आज रात आखिरी है ना। तो कोलाबेचा श्रीधर देखो, भगवान से इतना उनको प्रेम था ना, उनको लगा कि भगवान जा रहे हैं, पता नहीं अभी हम कब मिलेंगे, है ना। तो वो है ना, भगवान को सोचा कि मुझे कुछ गिफ्ट देना है ना, कुछ तो मुझे देना पड़ेगा भगवान को। तो क्या देंगे, है ना, वो कुछ कमाते ही नहीं थे, है ना। उनके पास जो घर था ना, उसमें बस 4 दीवारी थी, छत भी नहीं था, है ना। वो इतने गरीब थे। बट समां उन्होंने ना कहीं से एक कद्दू अरेंज करा, पम्पकिन, और चैतन्य महाप्रभु को रात में जाके पम्पकिन दे रहे हैं वो कद्दू, है ना, कि महाप्रभु मेरी तरफ से आपको, है ना। और महाप्रभु सोचे बहुत खुश हो गए, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति तदम भक्ति उपरितम स्नामी प्रयतात्मना, है ना। प्रेम से मुझे जो भी दो, है ना, वो मेरे को एक्सेप्ट है। तो कोलाबेचा श्रीधर है ना, उन्होंने अरेंज करा क्या, कद्दू। भगवान को बहुत अच्छा लगा, महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। महाप्रभु मतलब एकदम गदगद हो गए, बोले कि जो चाहिए ना बताओ, है ना, जो मांग लो आज, है ना, जो मांगोगे मैं दूंगा, है ना। उस टाइम कोलाबेचा श्रीधर अगर बोलते ना इंद्र का पोस्ट, इंद्र का पोस्ट दे देते भगवान। बट उन्होंने पता क्या मांगा, वो बोला महाप्रभु, है ना, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीशिकामये मम जन्मनि जन्मेश्वरी भवताद भक्ति रहत की तोई। मेरे को ये जन धन ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं बार बार पैदा होना चाहता हूँ, है ना। और क्यों पैदा होना चाहता हूँ बार बार, कि मैं ऐसे ही मैं आऊँ, ये कोलाबेचा श्रीधर बनकर आऊँ, आप ऐसे ही निमाई पंडित बनकर आओ, और मेरे साथ ऐसे ही आप वाद विवाद करो, मेरे साथ झगड़ा करो, मेरे साथ बार्गेनिंग करो, है ना। दिस इज वॉट आई वॉन्ट एवरी लाइफ, है ना। सोच रहे हो भक्त का क्या भाव है ना। महाप्रभु एकदम हार्ट उनका मेल्ट हो गया, है ना। तो एक्चुअली ये है, जब हमारे हृदय में सरलता होगी ना, तो भगवान हमारे साथ ऐसे ही जो निज प्रेममय आदान प्रदान करेंगे, है ना। नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें डेवलप करना है सरलता का भाव। और वो कैसे होगा, हाँ, उसके लिए मंदिर आना पड़ेगा। आप थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कथाएं हो गई, प्रैक्टिकल बात करेंगे, उसके लिए मंदिर आना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे मैं आने से लेक्चर के पहले मैं दीपक गुरु से पूछ रहा था कि पुराने कितने भक्त आ रहे हैं, तो मेरे को पता चला आधे तो आते ही नहीं अब, है ना। तो आ ही नहीं रहे हैं, तो ये सरलता का भाव कहाँ से आएगा, है ना। भक्तों के संग में नहीं आएंगे तो कैसे होगा, है ना। भक्तों के संग में नहीं आएंगे तो ये सरलता का भाव नहीं आएगा, भगवान नहीं मिलने वाले हैं फिर, है ना। तो भक्त मंदिर आ क्यों नहीं रहे हैं, 2 मिनट लो, सब सोच के बताओ। 1 साल पहले बहुत सारे ऐसे भक्त हैं ना, जो हमें लग रहा था बहुत सिंसियर हैं, है ना, बट अब वो एकदम से गायब हो गए, है ना, विजन में ही नहीं है कहीं। तो भक्त, हम ही थोड़ा सोचते हैं ना कि भक्त लोग मंदिर आ रहे थे, बहुत अच्छा सेवा कर रहे थे, साधना कर रहे थे, बट एकदम से बाहर हो गए, है ना, भक्तों के संग में नहीं है, कहीं है नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सब सोचो, है ना। नहीं, थोड़ा सोचो इस पे, है ना, नोट करो, फिर चर्चा करते हैं इस पे। कब तक करना है क्लास, अभी तो शुरू ही करा है टॉपिक। हाँ, सोचो, है ना, थोड़ा लो, 30 40 50 60 सेकंड। ऐसा क्या हो रहा है कि भक्त आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। हमें एक बार को लगता है कि अरे प्रभु जी बस अब आप ही नेता हो इस मंदिर के, और पता चला फिर नेता फिर अभिनेता निकले और गायब हो गए। यस प्रभु जी। नहीं, थोड़ा और सोच लो, है ना, और सोच लो, अच्छे से सोच लो। दिमाग की ना आखिरी नस तक उतरो। हाँ, मैं जब बताऊंगा, जब स्टार्ट कर रहे हैं, हाथ खड़ा करना। सोच लो, अच्छे से सोच लो। पहले उनसे पूछूंगा जो खुद कभी कभी आते हैं गला कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है कुछ,
सबसे बेस्ट है कि आप खुद को पकड़ो कि यार मैं क्यों नहीं आता, उसको मत सोचना कि वो क्यों नहीं आ रहा था, अच्छा उसने ना इसलिए नहीं आ रहा, वो गायब हो गया इसलिए नहीं, है ना। हम सब ऐसे ही हैं कि थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। कोई एक जना जो खींच के ला रहा है, नहीं तो गायब हम भी हो जाएं। ठीक है, टाइम्स अप, है ना। अब हाथ खड़ा करो, बारी बारी से पूछेंगे। हाँ, सारे हाथ खड़ा करो जिसको बताना है। हाँ पहले, हाँ पहले कौन बताएगा? निखिल प्रू बताएंगे, ठीक है। निखिल प्रू, हाँ अंश, अंश, हाँ अंश, सॉरी अब मैं बोलने लगा। हाँ बहुत बेसिक बात करो, है ना। बहुत वैसा आंसर मत करो कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है प्रभु, ऐसा नहीं। बहुत बेसिक से बात करते हैं। यस प्रभु, हम और बताओ थोड़ा खुल के बोलो, खुल के कि प्रभु वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाता ना हमारे, इसलिए मंदिर नहीं आते हैं। हाँ हाँ हाँ। कोई ऐसा बोलता है ना प्रभु कि भाई पढ़ाई का है, ट्यूशन जाना होता है, मैं तो बोलता हूँ प्रभु जेन्युइन आंसर है ही नहीं, है ना। बस उसको आना नहीं है मंदिर, उसने बहाना बना दिया पढ़ाई का, कुछ तो फिट करना था, है ना। आप उससे पूछ लो भाई, आप दो कंपेयर करना, दो चीज़, कि भाई आपने इंस्टाग्राम कितने घंटे चलाए और मंदिर कितने घंटे आए, है ना। उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। हमें आना नहीं है, उसके बाद हम आंसर ढूंढते हैं कि आप फिट किस में करना है इस चीज़ को, ना आने को जस्टिफाई कैसे करना है। और यशोवर्धन प्रभु बताएंगे हम। जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट मेरे को लगता है अगर मैं अपने आप को देखूँ कि मैं क्यों नहीं आता हूँ, और जो वक्त है इन्होंने आदत छोड़ दिया है ना, और मैं अगर अभी भी लोग एक आध बार आती हूँ तो इस वजह से आती हूँ, मुझे लगता है टाइटली प्रैक्टिस लोकेशन या फिर जो बाकी लोगों को पकड़ रखा है ना, खींच खींच के ले आते हैं, वरना मेरे को भी शायद से अपनी माया है ना, बट उन लोगों का शायद से वो ऐसे ड्यूटी से है ना, संपर्क छूट गया है, या फिर उन्होंने ऐसे भाई छूट क्यों गया है? आना बंद कर दिया तभी तो छूट गया ना, छूट क्यों रहा है? कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर आया कि उसने मेरे से ऐसे क्यों बोल दिया है ना, या हाँ फिर क्या अपने आप के साथ विद्वान समझते हैं, मेरे को समझता ही हाँ, नहीं है। तो मंदिर आए थे झगड़ा करने। हाँ हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं ना, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी आ जाती है। हाँ, और तो जी वो सोचते होंगे कि मंदिर मंदिर जाके क्या करना, थोड़ा करियर ही बनाना है। हाँ वही हो गया। हाँ, और प्रथम रूप, क्योंकि जैसे कोई अगर फर्स्ट टाइम आया तो वापस क्यों नहीं आता, क्योंकि वो आकर फॉल्ट फाइंडिंग जैसे बोला वैसा हाँ। अपराध करता है, तो जो थोड़ी बहुत भक्ति की बीज थोड़ी मतलब रुकना शुरू हुआ था वो वापस कर जाता है। हाँ, और शुरू में आने तो बहुत सिंपल होता है, हम हर चीज़ को गैस कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो हमारे से धीरे धीरे वो फैक्टर आ जाता है। ये शायद सब सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। शायद मान लीजिए जैसे माइक का ही हो गया कि अगर मुझे माइक नहीं लगाने की, उन्होंने मुझसे माइक छीन लिया, तो ये भी हो सकता है। लेकिन शुरुआत में जब हम आते थे, अरे मुझे आप गाए, मैं नहीं धीरे धीरे हमारे अंदर जैसे वो ईगो फैक्टर आ जाता है और हम छोड़ देते हैं। हाँ। और यस ब्रो, वैष्णव में फिट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बाहर की शानो शौकत में इतना एक तरह से लीन हो जाते हैं कि वैष्णव जैसा आपने बोला सिंप्लिसिटी, तो वो सिंप्लिसिटी वो नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, तो इसलिए वैसे वो एक बार आते हैं फिर दोबारा आते हैं। मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं छोड़ना चाहते हैं वो। शुरू में आए तो थोड़ा एक कल्चर चेंज मिला, कुछ मज़ा आया, है ना, कि यार हरे कृष्णा डांस वांस हो रहा है, प्रभु जी प्रसाद प्रसाद हो रहा है, फिर कुछ देर बाद लगा यार वही तो सब है यार, नीरस हो रहा है, अपना ही ठीक था, वही पुराने वाला पार्टी वार्टी दावत आवत चल रहे हैं ना। हाँ देखो, एक्चुअली सबके बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स है, बट मैं जो टॉपिक है ना लास्ट में वही पकड़ूंगा, है ना। हाँ फिलोसफी जो है ना वो रेपिटेटिव हो जाती है, हाँ बोरिंग हो जाती है। हाँ, ये तो मैं मान ही नहीं सकता यार, है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतने शास्त्र मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा, आपका जीवन निकल जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे, और सब में अलग अलग कथाएं हैं ना। हाँ ठीक है। बाहर इतना सब कुछ नया नया, कुछ बहुत अलग अलग चीज़ें, हाँ तो यहाँ पर जब रेपिटेटिव हो जाता है ना तो फिर बोरिंग हो जाता है। अच्छा, मेरे को तो उल्टा लगता है, बाहर सेम ही चल रहा है, पुनः पुनः चरवित चरवाना नाम भागवत कहता है ना, कि सेम ही टेस्ट है, बार बार च्यूइंग द च्यूड, है ना, वही कर रहे हैं, वही बस एक जैसा सारा हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वही सोना खाना उठना, और है ना,
बट मंदिर में मेरे को ज़्यादा लगता है ज़्यादा टेस्ट है ना। आप देखो मंदिर में 12 महीने अलग अलग तरीके के फेस्टिवल चलते रहते हैं, है ना। कभी ये फेस्टिवल है, कभी वो फेस्टिवल है, कभी ये यात्रा है, कभी वो यात्रा है, अलग अलग टेस्ट है ना। बट बाहर क्या टेस्ट है ना। बाहर एक ही टेस्ट है कि भाई अगर कुछ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करना है तो डिस्को जाना है, वहाँ खाना है, दारू पीना, आना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है जी, फिर से डिस्को जाना है, फिर से खाना है, फिर सोना है ना। उनका सेम वही च्यूइंग द च्यूड, है ना। वो अगली बार जब जाते हैं ना डिस्को, वो भी कहते हैं यार बहुत बोर हो गया यार, अब नहीं जाएंगे यार। फिर जब अगला सैटरडे संडे आता है कि यार अब क्या करना है यार, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, चलो फिर से डिस्को, है ना। यस ब्रो। शिला रूपा देखिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। यस प्रो जी। हाँ ध्यान से सुनो। हाँ फिलॉसफी कृष्णा मैम फिलॉसफी अच्छे से और डीपली नहीं पता, मतलब ऊपर ऊपर से पता है, थोड़ा बहुत पता है, या तो जानने का बहुत अच्छे से कोशिश नहीं करा, या फिर पूरी तरह से फिलॉसफिकल क्लैरिटी नहीं। फिलॉसफी में डाउट था, है ना, क्लैरिटी नहीं रहा तो संशय आत्मिका विनश्यति, है ना। और फिर वो निकल गया कि अरे क्या समझ में नहीं आ रहा है, लोग ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। यस प्रो। हाँ प्रो। हाँ 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 इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी आ गया कि यार यही तो कर रहे हैं ना, 16 माल वाला हम खुद कर लेंगे, किसी के गाइडेंस में रह के क्यों करना है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ऐसा दो ही व्यक्ति कर सकता है, अकेले रह के अपना साधना करके और भगवत धाम प्राप्त कर सकता है, या तो वो मुक्त आत्मा है ना, नित्य मुक्त आत्मा है, या तो वो पागल है, ही इज़ अ क्रेजी, है ना। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में आते हो। हाँ पहले वाले तो मेरे को लगता नहीं है तो फिर सेकंड वाला ऑप्शन ही बचा। यस प्रो, पार्थ प्रो। हाँ हाँ साधना अच्छा नहीं आके ऐसे ही बस टाइम पास कराओ फिर निकल गया। और यस प्रो, अक्षित प्रो। यस प्रो। हाँ यही है। हाँ मतलब जीवात्मा के अंदर क्या है, फॉल्स ईगो है, वो बाहर फॉल्स ईगो सेटिस्फाई कर रहा था, है ना। अब वो मंदिर में आ गया तो फॉल्स ईगो अभी भी वही है ना। मंदिर में आके फॉल्स ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ यस प्रो। यस प्रो जी। एक क्लास लेते हैं ना। हरे कृष्णा। मंदिर में तो आया पर उसने लिसनिंग और हियरिंग अच्छे से नहीं करी, तो हाँ साधना अच्छी नहीं किया। हाँ हाँ यस प्रो। भगवान और भक्तों के प्रति लव धीरे धीरे कम होता गया और वो संग उनका छूटता गया, इसलिए आदत जय, सबने बहुत अच्छा आंसर करा है ना। रुक जाओ बाद में बता देना सबसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी आप ही हो यहाँ पे। एक्चुअली सबने बहुत अच्छा आंसर करा है ना, सबके आंसर जेन्युइन है ना। बट मैं थोड़ा अब इन चीज़ों को ना टॉपिक से कनेक्ट करके बताता हूँ। जो दीपक प्रभु ने मेरे को बोला, तो मंदिर में जब कोई भक्त आता है ना, सब चीज़ है, साधना उसने किया नहीं किया, उसके फॉल्स ईगो आ गया, उसके अंदर ये आ गया वो आ गया, उसके अंदर ये है कि नहीं यार पढ़ाई करना वो करना है ना, सब ठीक है। बट एक चीज़ ऐसी है कि अगर उसको वो चीज़ मिले ना मंदिर में, है ना, तो वो कभी मंदिर छोड़ के जा नहीं सकता। क्या? हाँ प्रसाद तो पहले ही मिल रहा था ना। हाँ जोर से, क्या बोली, जोर से बोले। हाँ रोज इधर से बोलेगा लव एंड केयर। अगर वो मंदिर में आके साधना भी करना बंद कर दिया ना, बट उसको केयर मिल रहा है वो तो भी नहीं जाएगा।
है ना, उसको मंदिर में आके ये लगाना कि यार ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट इसको कहीं से केयर मिल रहा होगा ना, एक भक्त भी केयर कर रहा होगा तो वो भी नहीं जाएगा छोड़ के, है ना। और क्या बता रहे थे, उसके अंदर ये होगा कि यार पढ़ाई करनी है, यार मैं पढ़ाई नहीं करूँगा मंदिर में, क्या क्या सब मेरा करियर ख़राब कर देंगे लोग, नहीं, उसको लगेगा यार नहीं केयर मिल रहा है, कुछ भी है यार प्रभु जी बहुत प्यार से बात करते हैं यार, है ना, जाना पड़ेगा मंदिर में, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन उसका एक ही है, क्या, कि लव एंड केयर। और ये हमारी ड्यूटी बनती है अगर हम मंदिर में आ रहे हैं। अभी एक्चुअली हम मैक्सिमम यहाँ पे बहुत फिल्टर्ड आउट लोग हैं जो काफ़ी सालों से मंदिर आ रहे हैं और अभी भी टिके हुए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यार जो अब नए जो लोग आ रहे हैं ना, उनको लव एंड केयर देना, है ना। जैसे कोई बोला कि रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं ना, तो यही प्रो जी, हम कुछ दे सकते हैं ना किसी को, तो हम धन दौलत नहीं दे सकते जो मंदिर में नया भक्त आ रहा है ना। कुछ दे सकते हैं तो थोड़ा केयर दे सकते हैं, रेस्पेक्ट दे सकते हैं। और हर कोई एक्चुअली आता भी, उसको लगता है कि यार ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, बड़ा रेस्पेक्ट से बात करते हैं, है ना। जब उसको रेस्पेक्ट मिलेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा कि यार कितना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतना केयर कर रहे हैं, है ना। समझ रहे हैं आप लोग, एग्री करते हैं चीज़ से, है ना। एक्चुअली में जब ये केयर होगा ना, आपस में भक्तों का लव होगा, तो ही रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, है ना। और रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, हु शुड बी द सेंटर ऑफ दैट रिलेशनशिप, कृष्णा। अब जैसे मैं कई बार मंदिर में देखता हूँ, है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जनरल है, ये हमारे मंदिर का नहीं, हमारे मंदिर का ही है। भक्त लोग बहुत बार मंदिर में आते हैं, बट उनका रिलेशनशिप भी आपस में बन जाता है, बट सेंटर क्या होता है, कृष्णा होते ही नहीं है ना। वो उनका सेंटर क्या होता है, उनकी मंदिर के बाहर की चीज़ें ही होती हैं, है ना, कि यार ठीक है, और बता तू तेरा क्या चल रहा है, मेरा भाई वो चल रहा है, मेरा भी वही चल रहा है, ओ भाई बढ़िया है ये वो, है ना। फिर वो आपस में करके फिर कुछ दिन बाद कहते हैं मंदिर क्यों आ रहे हैं भाई हम, हाँ यार क्यों आ रहे हैं, अपना ही तो ठीक है ना, चल छोड़ यार अब नहीं आते हैं। रिलेशनशिप बन गया और वो फिर बाहर हो गया, क्योंकि कृष्णा वॉज नॉट द सेंटर, है ना, भगवान कृष्ण नहीं थे, है ना। तो रिलेशनशिप बनना चाहिए, है ना, केयर के माध्यम से। तो जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना, कि केयर एक्चुअली किस किस लेवल पे हम कर सकते हैं आपस में भक्तों का। ये थोड़ा प्रैक्टिकल है ना, सबको बताना है ना। टाइम थोड़ा सा कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे चर्चा करके हम निकल गए, हमें प्रैक्टिकल करना है आगे से, है ना। और हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है हमारे मंदिर में, कि अगर हम मंदिर में आ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यार ये केयर वाला प्रिंसिपल है ना, हमें लगाना है ना। किसके जो डिवोटीज दिख रहे हैं मेरे को, मुझे केयर करना है, रेस्पेक्ट देना है, लव देना है, और वो जाना नहीं चाहिए। कोई एक बच्चा भी, एक भक्त भी मंदिर छोड़कर चला गया ना, तो मेरी जिम्मेदारी है ना। भगवान मेरे को पकड़ेंगे, प्रभुपाद जी मुझे पकड़ेंगे और मुझे कूटेंगे, यार तेरे को बोला था कैसे भाग गया मंदिर से, है ना। ऐसा भाव होना चाहिए हमारा। तो केयर किस किस लेवल पे हो सकता है ना, कैटेगराइज कर सकते हैं उसे, है ना। पहला फिजिकल, जैसे कि हाँ हाँ हाँ, अगर इमरजेंसी थोड़ा वो कर सकते हैं, लेकिन तो भी करें। और बहुत लविंग सा हक देना। हाँ जय। और जैसे जॉब में किसी के प्रॉब्लम है ना, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, तो हेल्प करना चाहिए, है ना। अभी मैं गाजियाबाद मंदिर गया था, मैं प्रभु जी से बात कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छा एक चीज़ बताया उन्होंने केयर पे। बोले एक माता जी है ना, माता जी है ना, उनका जॉब में अच्छा नहीं चल रहा था, उनका सिलाई का जॉब था, है ना। तो वो जहाँ जॉब करती थी ना, उनका जो मालिक था वो बहुत ही खड़ूस था। वो क्या करता था कि वो माता जी वॉशरूम भी जाती थी ना, तो टोक देता था, अब बहुत ज़्यादा वॉशरूम जा रहे हो आप, है ना, थोड़ा देखो। तो माता जी पता इतना डर जाती थी कि उन्होंने पानी पीना कम कर दिया, उनको स्टोन की प्रॉब्लम हो गई। तो फिर भक्तों ने पूछा माता जी क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरा ऐसे से चल रहा है। तो भक्तों ने ना इकट्ठा होके, वो माता सभी ने पैसा इकट्ठा करा और माता जी को मशीनें खरीद के दिया, है ना। उनको दुकान दिलाया, शॉप दिलाया, बोला आप ठीक है वहाँ जाना नहीं आज के बाद, है ना। हम लोग इकट्ठा करके पैसा उनको मशीनें दिया, बोला अब यहाँ पे आप आपका काम करो अच्छे से, है ना। वो माता जी अभी अच्छा अपना काम कर रही हैं, अच्छे पैसे अर्न कर रही हैं। तो एक्चुअली दिस इज डिवोटी केयर। अब वो डिवोटी है ना, सदा के लिए आपका हो गया, है ना। अब उसका कल को मन नहीं लगेगा ना भक्ति में, वो तो भी मंदिर आएगा, बोले यार प्रभु जी बहुत अच्छे लोग हैं यार, है ना, कोई नहीं कुछ नहीं करेंगे, जाके मंदिर में प्रभु जी से मिलने जाएंगे, है ना। क्यों? आपने उसको फील कराया कि यार यू आर समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना, मेरे मंदिर के लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो,
है ना, आपने उसको प्रेम दिया है, रेस्पेक्ट दिया है, वो कहीं नहीं जाने वाला है ना। ये एग्जाम्पल एक फिजिकल केयर का। और क्या हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं कल को कोई भक्त उठ के फ़ोन करने लग जाए, हेलो दीपक प्रो जी पैसे चाहिए थे, दे दो यार। फिजिकल केयर प्रो, फिजिकल केयर। हाँ, प्रो जी दीपक प्रो पूछेंगे पैसे क्यों चाहिए आपको? मैं प्रो यार क्या बताऊँ यार, वो पापा ने दिया था 10,000 और मैंने वो ड्रीम 11 में लगा दिया, डूब गया यार। पापा बड़ी कुटाई करने वाले हैं, प्रो दे दो यार, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना प्रो, फिजिकल केयर है प्रो, ऐसा नहीं। फिर तो मैं बोलूँगा दीपक प्रो को बुला लेना उसे मंदिर, फिर आप कूटना उसे, फिर उसके पापा के पास लेके कुटवाना। ठीक है प्रो, है ना। ये सब फिजिकल केयर है ना भक्तों का। पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, आपको आता है, बुला प्रो मैं हेल्प करूँगा यार, आप पढ़ाते हैं आपके साथ में, है ना, कैसे पास नहीं हो गए आप, है ना। और क्या आता है, किस लेवल पे कैटेगराइज कर सकते हैं केयर को? बताओ बताओ। हाँ, इमोशनल केयर, है ना। इमोशनल केयर में क्या होता है? हाँ, प्रॉब्लम्स को सुनना। कई बार क्या होता है कि हम कुछ समाधान नहीं दे सकते प्रॉब्लम्स का, मुझे पता है मैं नहीं दूंगा यार, उसका प्रॉब्लम है, उसके जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट वो चाहता भी नहीं है आपसे सॉल्यूशन, कि आप सॉल्यूशन दो, उसे पता है आप सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते, है ना। बट वो चाहता है कि कोई बैठ के सुन ले मेरे से, है ना। वो सुन लेगा, मेरा आधा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, मेरा हार्ट वैसे ही लाइट हो जाएगा, है ना। तो ये इमोशनल केयर है कि प्रभु आप क्या चल रहा है ना, बताओ आप। वो बैठ के बोलेगा, है ना, बताएगा, है ना, तो उसको ऐसे ही अच्छा लगेगा। और क्या आएगा इमोशनल केयर में? पीछे वाले बताओ ब्रो, क्या? प्रसाद कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत प्रैक्टिकल क्लास है ब्रो, आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, आपको भी और इस मंदिर के भलाई के लिए है। और क्या आएगा इमोशनल केयर में? बताओ। हाँ, दुख में साथ देना। हाँ, और हाँ हाँ, और हाँ उसको इतना कंफर्टेबल कर देना कि वो चाहे कैसे भी मोशन है उसको फॉल डाउन हो गया कुछ हो गया तो वो वापस से शेयर कर। हाँ, उसको लग रहा है मैं भक्ति में अच्छा नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बेकार कर रहा हूँ। नहीं, उसको बुलाना, उससे अच्छे से बात करना, है ना, उसको कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना, ये इमोशनल केयर है ना। घर पे किसी के प्रॉब्लम चल रहा है, प्रभु अच्छा नहीं चल रहा है, घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मंदिर आने नहीं देते हैं, बहुत टेंशन में हूँ प्रभु जी, है ना। या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई प्रभु, है ना, अब बस जीवन में एक ही चीज़ दिख रहा है मेरे को, मृत्यु, सुसाइड। तो उसको बैठ के अच्छे से बात करना है, समझाना, दिस इज़ इमोशनल केयर, है ना। और प्रभु हाँ, उनको सिर्फ ऐसा नहीं कि वन साइडेड होने लगे कि बस मैं ही उन्हें बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में उनको इस तरह का फील कराना दैट दे हम भी उनसे, लाइक इट्स नॉट कि सिर्फ वो कि हम जस्ट उनके लिए एक वेंट हैं फॉर इमोशंस, बट थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो ना। जल्दी बोलो प्रभु जी। उनसे पर्सनली उनको अपना भी बताना, लाइक हाँ फ्रेंड। हाँ, अपना भी बताना, उनका भी सुनना, राइट। जय, बहुत अच्छा बताया प्रभु आपने, है ना। और क्या आ सकता है केयर में? इमोशनल केयर हो गया, फिजिकल केयर हो गया। हाँ 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 हाँ, उनको बर्डन नहीं लगना चाहिए कि यार मंदिर में आ गया, ये मेरे से बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें करा रहे हैं, वो टेंशन में आ रहा है कि यार बस मौका मिले और मैं भाग जाऊँ यहाँ से। नहीं नहीं, उसको इजी फील कराना कि है ना प्रभु ठीक है, जितना आपसे हो रहा है उतना करो, धीरे धीरे आप पिकअप कर सकते हो। और मंदिर को कंफर्ट जोन बना देना किसी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बताया, है ना। उसको फैमिली ऐसा लगना चाहिए, है ना, जैसे घर जैसा लगना चाहिए अपना मंदिर। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं 10 दिन के लिए, तो थक के कहाँ आते हैं? घर, ओ घर आ गए, होम स्वीट होम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही होना चाहिए मंदिर, है ना। उसको ऐसा फील कराना है कि मंदिर अगर हम आ गए तो बेस्ट प्लेस यही है, सबसे रिलैक्स हम यही फील करने वाले हैं, है ना। तो इमोशनल केयर हो गया, फिजिकल केयर हो गया, और हाँ स्पिरिचुअल केयर। स्पिरिचुअल केयर में क्या आएगा? हाँ राइट, हाँ, साधना में हेल्प करना। जैसे दीपक प्रभु है, दीपक प्रभु एक्चुअली स्पिरिचुअली केयर कर रहे हैं ना,
बोलते हैं कि साधना कार्ड भेजो प्रभु, मॉर्निंग में आप जपा साथ में करते हैं, पता है कि भाई ये सारे सब गड्ढे में जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, है ना, तो कैसे उसको ऊपर उठाना है ना। दिस इज स्पिरिचुअल केयर कि प्रभु एक काम करते हैं, मॉर्निंग जपा सेशन करते हैं, सब आएंगे, है ना, मॉर्निंग में जपा करेंगे तो भक्ति में ऊपर उठेंगे। दिस इज स्पिरिचुअल केयर। या फिर आपने देखा कि प्रभु जी वो भक्त है ना, वो ठीक नहीं लग रहा है, वो पहले तो माला वाला करता था, अब है ना वो कभी कभी आता है और लग रहा है वो किसी भी पल है ना गायब हो सकता है, किसी भी टाइम मिस्टर इंडिया हो जाएगा प्रभु जी वो, है ना। तो उसी टाइम कुछ ऐसा प्रयास करना कि वो भक्ति में दोबारा पिकअप करे, उसको भक्ति में दोबारा टेस्ट है, वो साधना अच्छे से करे, है ना। उसके फिर बहुत तरीके हैं ना, उसमें हम कभी अलग से चर्चा कर सकते हैं, है ना। दिस इज़ क्या है ये स्पिरिचुअल केयर, है ना। एक आता है हेल्थ केयर, लास्ट है। हेल्थ केयर में क्या हो सकता है? हाँ राइट, ये बहुत बड़ा क्या है वेपन प्रीचिंग में। कोई भी बीमार हो रहा है ना तो आप समझ जाओ कि बस भाई, है ना, एक मौका मिल गया तगड़े वाला प्रचार करने का, है ना। गुड़गांव में एक्चुअली हमने ऐसे ही किया था, 2 भाई थे, है ना, वो आप लोग जानते भी होंगे, वो दोनों बीमार हो गए एक साथ, उनको डेंगू का यही वाला टाइम था, डेंगू वाला सितंबर अक्टूबर का, और वो बीमार हो गए दोनों भाई एक साथ, अस्पताल में एडमिट थे। तो मेरे साथ एक भक्त थे, वो काफ़ी सीनियर भक्त थे, वो बोले प्रभु काम करते हैं घर पे चलते हैं। मैंने कहा प्रभु घर पे जाने वाला थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं है, घर वाले बहुत चढ़े जाते हैं, है ना, एकदम खर्चा पानी लेके कि आ गए मेरे बच्चे को ब्रह्मचारी बनाने वाले लोग, यही है जिन्होंने बिगाड़ा है मेरे बच्चों को। मैं कहा प्रभु मैं तो नहीं जाऊँगा। बोले नहीं प्रभु जी चलते हैं। अच्छा ठीक है प्रभु चलते हैं। तो प्रसाद उछाद लेकर गया, दोनों 2 भाई थे पड़े हुए थे ऐसे, है ना, और हम घर पे गए और उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम करा। और उसके बाद वो दोनों भाई है ना इतना खुश हुए, वो रेगुलर मंदिर आने लग गए, है ना। और वो दोनों भाई ब्रह्मचारी हैं गुड़गांव में। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा वेपन है प्रीचिंग में ना। और ये एक्चुअली जो केयर है ना, केयर एक्चुअली ये क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से, है ना, कि भाई केयर है ना करते हैं प्रभु जी, वो लगता है ना वो केयर कर देगा, वो जुड़ जाएगा प्रभु जी, फिर है ना हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, है ना। सामने वाला व्यक्ति आजकल बहुत स्मार्ट है, वो भाप जाएगा कि है ना इसको कुछ बेनिफिट चाहिए मेरे से, वो तो पहले ही सोच के बैठा है कि इस कौन वाले हैं ना ये तो पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, एक्चुअली हमारा केयर एक्चुअली ऐसा लगना चाहिए कि यार इसका केयर है ना वो जेन्युइन है ना। वो कब लगेगा? हाँ अंदर से क्या होता है ये तो बहुत ही हाँ। और सामने वाले व्यक्ति को कैसे लगेगा कि यार इसका केयर वो वाला नहीं है कि बस जोड़ के रख लेगा, इसका कोई टारगेट होगा कि इस महीने 5 बस जोड़ने हैं, है ना, उसको पता है ये टारगेट लेके बैठा है, इस कौन वाले लेते हैं। तो ये कैसे लगना चाहिए यार ये वो वाला नहीं है यार, इसका जेन्युइन केयर है। हाँ नेचुरल, ही तो पूछ रहा हूँ मुझे, नेचुरल कैसे लगेगा? हाँ बातों से नहीं होता है, इस्कॉन वाले बात करने में तो बहुत माहिर है, बातों से थोड़ी होगा प्रभु जी, आचरण में दिखना पड़ेगा। कैसे? और सोचो यार आप लोग इतने पुराने भक्त हो गए हो, प्रीचिंग करने के लिए उतर रहे हो मैदान में, आप में से 5-6 फैसिलिटेटर हो। हाँ और प्रथम प्रभु बताएंगे। जब हम ये सोचे कि हम नहीं प्रीच कर रहे हैं, हम प्रभुपाद जी के माध्यम से नहीं मैं कह रहा हूँ सामने वाले को कैसे लगेगा कि इसका यार केयर जेन्युइन है मेरे लिए। प्रार्थना करें कि प्रभु की और उस भाव से हम करें। यस हाँ यही तो कैसे लगाना है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग तो बस एक्टिव पैसिव वॉइस खेल रहे हो मेरे साथ। हाँ एक्शन से पता लगना चाहिए। और हाँ पहुँच रहे हैं प्योरिटी और उसके लिए हमें एक्चुअल में उसको उस फीलिंग को अपने अंदर इनवाइट करना पड़ेगा। हाँ अनिकेश प्रो हाँ राइट हाँ इस फीलिंग को खत्म करना कि मैं इनको प्रीच कर रहा हूँ, वो मुझे प्रीच एक्चुअली में क्या है कि आपको है ना बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अगर आपको सच में उसको दिखाना है ना कि यार मेरा जो केयर है जेन्युइन है,
तो ना एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा तपस्या लेना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि एक एक बग बनाने के पीछे है ना मैंने एक गैलन ब्लड लगा दिया है अपना, है ना। तो हम सोचे कि यार मैंने उसको कॉल कर दिया, वो थोड़ा परेशान था, प्रभु जी मेरा केयर हो गया। कैसे केयर हो प्रभु? मैंने कॉल कर दिया था उसे प्रभु, है ना। अच्छा कर दिया प्रभु, मेरा हो गया। कुछ नहीं होना इससे, आपको एक्चुअली एक स्टेप और आगे बढ़कर जाना पड़ेगा, है ना। अपना समय देना पड़ेगा, है ना, हो सकता है धन भी देना पड़ेगा आपको, अपना खून जलाना पड़ेगा, है ना। तब उसको लगेगा कि यार ये जेन्युइन है ना, तब वो एक्चुअली फिर आपका हो पाएगा, है ना। आपके उसके हृदय में आपके प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम आएगा। और एक बार उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम हो गया ना कि यार ये बहुत अच्छे प्रभु जी है ना, मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, मुझे अब अच्छे लगते हैं ये, उसके बाद आप उसको कहीं भी बुलाओगे, कैसे भी बुलाओगे, कुछ भी कराओगे, करेगा, है ना। उसने कभी अपने घर में झाड़ू नहीं मारा होगा, बट उसको बोलोगे प्रभु झाड़ू मार दो पूरे हॉल में, वो कमर पकड़ के झाड़ू मारेगा, लेकिन मारेगा प्रभु जी ने बोला यार, प्रभु जी करना है। समझ रहे आप क्या है सिद्धांत? क्रक्स क्या है? केयर शुड बी जेन्युइन। और कैसे होगा जेन्युइन? खून बहाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक सिद्धांत प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा बैठ के, वो प्रभु जी ऐसे हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, क्या कर सकता हूँ मैं। जैसे हम सभी यंग हैं, है ना, कॉलेज में या स्कूल में हम बैठ के सोचते हैं यार मेरी गर्लफ्रेंड है यार, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। उसको लगे यार कि भाई मेरे लिए इसने कुछ करा है, ऐसा होना चाहिए हमारे हृदय में। और ये ऐसा मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो हम यहाँ बैठे हुए फैसिलिटेटर हैं 4-5, है ना, ये सबकी जिम्मेदारी है। श्रीला प्रभुपाद की सेना में, आर्मी में, है ना, सभी लीडर हैं। प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन इज नॉट अ मूवमेंट ऑफ क्रिएटिंग फॉलोअर्स। इस्कॉन क्या मूवमेंट है? टू क्रिएट द लीडर्स। एवरीबडी इज लीडर, हर कोई यहाँ पे प्रचारक है ना। तो सबकी जिम्मेदारी इस चीज़ पे सोचना, विचार करना, ठीक है। तो ये केयर का भाव है ना प्रभु, लास्ट है ना, ये केयर का भाव है ना। अब जैसे प्रभु जी हैं, है ना, कहाँ है सूरज प्रभु है और श्रीरांशु प्रभु है ना। अब हमें समझ में आ गया कि प्रभु जी भक्तों के साथ केयर करना है, ठीक है, करना है। बट अब श्रीरांशु प्रभु को, सूरज प्रभु को देख के लग रहा है यार क्या यार इसका क्या क्या केयर करना है, या सूरज प्रभु को देख के लग रहा है श्रीरांशु प्रभु यार ये इसका नहीं करना केयर, यार कोई और का करेंगे, ही डजंट डिजर्व केयर, है ना। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ईर्ष्या हो सकता है, हम भक्त नहीं मानते उसे, इतनी इसमें गलतियाँ हैं यार, इतना बेकार आदमी है ना, कुछ करता ही नहीं है, फालतू में नेता बना बैठा है अपने आप को। हाँ, बहुत रीजंस है ना, थोड़ा टाइम कम है। तो ये जो भावनाएं है ना, सामने वाले व्यक्ति को देख कर है ना, मुझे आना चाहिए कि यार ये प्रभु जी का मेरे को केयर करना है, ये प्रभु जी के प्रति मेरे हृदय में प्रेम है, सेवा करना है। ये कैसे आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, नहीं तो आज पूड़ी नहीं मिलने वाली है। जल्दी बताओ, सोचो कि अब मैं देख रहा हूँ प्रभु जी को, है ना, ये दिलीप प्रभु को देख के मेरे अंदर नहीं आ रही फीलिंग है केयर माय फुट, बट कुछ ऐसा होगी यार, मैं दिलीप प्रभु को देख के लगे प्रभु हरे कृष्णा यार, प्रभु यार आप प्रभु मैं आपका केयर करूँगा प्रभु, मैं आपके लिए खड़ा हूँ प्रभु, आप प्रभु जी मैं आपके लिए प्रसाद सर्व करूँगा। ऐसा क्या करूँ मैं? हाँ, मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ ऐसा प्रभु जी? गुड टाइम कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, गुड टाइम ही तो बनाना है। और बताओ, कोई और बताओ जो नहीं बोला अब तक। हाँ, अब देखो जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब प्रैक्टिकल चीज़ें लिख कर जाना, करना है। ऐसा नहीं कि पूरी बातें भूल जाओ सब। हाँ, पूरी के साथ साथ ये बातें भी पच गई। जैसे आपने बोला कि आप भाई साहब को क्या वो करना है, मतलब टेक केयर, तो भाई साहब को आपको पूरा खुश करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। भाई मेरे अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही खुश करने की सामने वाले व्यक्ति को। मैं यही तो पूछ रहा, फीलिंग ही कैसे आया? देखकर मेरे मन में आया कि यार मुझे खुश करना है प्रभु जी को। विनम्रता देखकर गुस्सा आ रहा है मुझे, देखकर उसे नहीं आ रही विनम्रता, गुस्सा आ रहा है मुझे देख के। कोई और? हाँ, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ यार क्वालिटी नहीं यार, मैं देख के उसमें 4 गलतियाँ दिखती है मुझे।
मेरा बच्चा ले मंदिर से बाहर कर दूं मैं उसे। उनकी तस्वीर को देख के उनके ऊपर दया। प्रभु जी जैसे कि हमने उनको देखा और क्या कहते हैं, हमने उनकी गलती को ना देख मतलब अच्छाई को देखा। और हाँ हाँ सर्व कर सकते हैं। और अभी जैसे आपने बोला कि प्रभुपाद जी को हमें जवाब देना है कि हाँ मेरे तो कैसे होगा। हाँ कृपा जी कुटाई करेंगे नहीं तो। हाँ वही वापस रिपीट करना चाहिए कि प्रभुपाद जी को हमें जवाब देना है। यस। और तो हमें हमें हम ये पूछ रहे हैं कि हमें उनसे गुस्सा आ रहा है, हम कृष्णा को बीच में रख के उनसे खेल रहे हैं। हाँ कृष्णा सेंट्रिक करके और पीछे से बताएंगे, विकास प्रभु बताएं, एक बार भी नहीं बोले। विकास प्रभु बताओ कुछ तो बोलिए प्रभु, कुछ भी बोल दो, हरे कृष्णा महामंत्र बोल दो। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अक्षित प्रभु बताइए कैसे, कुछ कुछ बताओ ऐसा हम करें कि मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत प्रेम आया और मुझे लगे कि यार इस प्रभु जी का मेरे को केयर करना है, प्रेम करना है, सेवा करना है। अक्षित प्रभु ही मेरे लिए सर्वे सर्वा है। अब भाव तो मुझे दिख ही नहीं रहा ना। हाँ तो देखिए इसका ना एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है। यस प्रभु। हाँ बताइए। सामने वाले भी श्री कृष्ण का नहीं देखना चाहिए। मैं अपने आप को कृष्ण कांत से नहीं देख पा रहा हूँ। आप तो एकदम सेल्फ रियलाइजेशन ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा पे ले गए। प्रभु जी देखो। हाँ प्रभु। हाँ हम कभी मतलब इनिशिएट कर सकते हैं हरे कृष्ण क्या कि और अपना पूछ सकते हैं आप कैसे हो। हाँ 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 अपने आप को नीचे समझ के जय जय। चैत्र महाप्रभु के बाद आप ही आए हो त्रिनाथ देवी से। तो देखिए इसलिए इसका ना मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बात करूँगा, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए ना। भगवान भगवदगीता में बोलते हैं मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। इस भगवदगीता के श्लोक में इस क्वेश्चन का आंसर है बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम। अब मैं और दक्ष प्रभु बैठकर मंदिर में आए और भगवद गीता पे चर्चा करें, है ना, कि प्रभु चलो आप भगवद गीता पे चर्चा करते हैं, ठीक है प्रभु, ठीक है ना, ठीक है। यो मम पश्यति सर्वम च इम पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। फिर दक्ष प्रभु बैठ के परपट पढ़ रहे हैं, मैं फिर उसको सोच रहा हूँ प्रभु इस पर भगवान ऐसा बोल रहे हैं, प्रभु भगवान तो हर जगह विद्यमान है। दक्ष प्रभु बोल रहे हैं हाँ प्रभु हमें भगवान को हर जगह देखना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ प्रभु भगवान देखो कितने करुणामयी है, कितने दयालु है ना। और हमने आधे घंटे आपस में भगवद गीता पे चर्चा करा, शास्त्रों पे चर्चा करा, और फिर हम चर्चा करें प्रभु देखो भक्त ऐसे हैं, शिला प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे, इस भगवद गीता के श्लोक को जिया करते थे प्रभु, है ना। तो हमें लगा कि हाँ प्रभु देखो दक्ष प्रभु के विचार कितने अच्छे हैं। दक्ष प्रभु बोलेंगे प्रभु जी के विचार कितने अच्छे हैं। हम आपस में बैठ के बोधयंत परस्परम तुष्यंती च रमंती च, आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है प्रभु, मज़ा आ रहा है प्रभु। कल फिर मिलेंगे प्रभु जी, कल मज़ा आएगा प्रभु। अब अगले दिन जब दक्ष प्रभु मुझे मिलेंगे ना, तो दक्ष प्रभु को देखते ही मैं दंडोत प्रणाम कर दूंगा। ओ हरे कृष्णा दक्ष प्रभु आगे प्रभु जी आप ही का इंतजार कर रहा था प्रभु जी, आइए बैठे बैठे प्रभु, है ना। चेंज क्या आया, प्रैक्टिकल क्या करा मैंने ये, हाँ रिस्पेक्ट दिया। अरे प्रैक्टिकल क्या करा भाई, किताब बैठ के पढ़ा साथ में, साफ बोलो ना, बुक रीडिंग करा साथ में बैठ के, है ना। तो प्रैक्टिकल चीज़ ये है, अगर हम चाहते हैं ना हमारे हृदय में जिस सामने वाले भक्त के प्रति केयरिंग वाला भाव है, प्रेम वाला भाव है, तो साथ में बैठ के बोधयंत परस्परम बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, है ना, या साथ में सेवाएं करनी चाहिए, है ना। तो जब ऐसा होगा ना, तब जब हम एक दूसरे के साथ हमारा बॉन्डिंग बनेगा, है ना, आपस में विचार हमारे एक्सचेंज होंगे, तब एक्चुअली हमारे हृदय में सामने वाले भक्त के प्रति हमारे हृदय में क्या प्रेम आएगा, समझ रहे हैं आप। तब जाके हम ये केयरिंग कर पाएंगे, प्रेम का आदान प्रदान कर पाएंगे, है ना। और ये केयरिंग वाला जो एटीट्यूड मंदिर में इस्टेब्लिश होगा ना, उसके बाद ही कोई मंदिर फ्लरिश कर पाएगा। अगर ये केयरिंग मिसिंग है हमारे समाज से, मंदिर से, तो मंदिर भी फ्लरिश नहीं कर पाएगा। फिर वही होगा आया राम गया राम। भक्त आया 6 महीने आया, माला किया, हरे कृष्णा किया, और
अपना उतरी उछाल उछाल के नाचा, प्रसाद पाया। 6 महीने बाद प्रभु जी कहाँ हो? मुझे तैयारी करनी थी एग्ज़ाम की, आऊँगा प्रभु आऊँगा अगले जन्माष्टमी, है ना। तो ऐसे ही होगा, है ना प्रभु? ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया क्या करना है, क्यों करना है, कब से करना है? आज से। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, चुटकुला जोक है तो बता सकता है। चुटकुला प्रश्न? आई वुड प्रिफर द चुटकुला। इसलिए जब वो जैसे जब शुरुआत में आते हैं, जब कई बार मैंने पूछ लिया कि मैं बार बार भूल जाता हूँ। हम कई बार मंदिर में जब शुरुआत में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सिंपलिसिटी रहती है, ये बहुत रिस्पेक्ट रहते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, है ना। एक दूसरे के जिसको प्रसाद पाने जाना है जा सकता है ना, आप लोग जा सकते। अच्छा अच्छा, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं, धीरे धीरे जब हमें कुछ सेवाएं मिलती हैं, फिर हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। जैसे मेरे अंदर अहंकार आता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये वाला मैं देखा हूँ। तो इस भाव को मैं कैसे हटाऊँ, या फिर मैं उस वापस से सिंपलिसिटी वाले उसमें कैसे जाऊँ कि मैं मतलब जैसे आपका कि भक्त वो जो सिंपल होता है और हमारा मोटिव है भगवान का, तो फिर भक्त हम जब हम सिंपल हो, सिंपल वापस से मैं कैसे बनाऊँ? कितने समय है प्रभु जी? 5 मिनट है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि कुछ दिन मंदिर में आए, टिके, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, थोड़ा सा सेवा कर लिया, 4 लोगों ने पीठ थपथपा दी हमारी, हमें लग गया अब तो मैं ही हूँ नेता। मैं हूँ, कल का नहीं आज का, मैं ही नेता हूँ अब, है ना। तो एक छोटा सा मैंने एक भक्त ने एक कथा सुनाया था कि एक व्यक्ति था, है ना। सुन रहे हैं सभी? हाँ। 2 पूड़ी तो उन्होंने सोच विचार करते ही खा लिया होगा ना यार। तो ये व्यक्ति था, है ना, वो अपने गांव से आया नौकरी करने, है ना। और जब वो नौकरी करने गया सेठ के पास तो बहुत अच्छा नौकरी करा, सेठ ने उसको बहुत तरक्की दी, है ना। फिर बाद में उसने और लोगों को हायर करा अपने यहाँ, तो वो लोगों को इतनी तरक्की नहीं मिल पा रही थी, उतने अच्छे से नहीं काम कर पा रहे थे जितना कि वो व्यक्ति कर पा रहा था। तो बाकी लोगों ने सोचा यार ये सेठ है ना, ये इस आदमी को इतना प्रेम देता है, इसी को इतना प्रमोशन दे रहा है, हमें तो उतना नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसा करो इस आदमी को गिरा दो, है ना, इस आदमी को गिरा दो। तो उन्होंने सोचा यार कैसे करना है, कैसे गिराना है, कुछ लूप होल निकालो। तो उन्होंने देखा कि ये आदमी है ना बीच बीच में, है ना, नौकरी करने के बाद, है ना, कहीं जाता है ना, कहीं जाता है, फिर चुपके से आता है, चुपके से जाता है, चुपके से आता है। तो कहीं ने कुछ ना, ये शायद सामान चोरी कर रहा है। तो एक काम करते हैं ना, सेठ के पास जाके बोलते हैं कि ये सामान चोरी कर रहा है और इसको फंसा देते हैं और ये नौकरी से आउट, तो वी आर इन, अगला प्रमोशन मेरा है। तो सेठ को जाके बोल देते हैं कि सेठ जी आप बहुत प्यार करते हो ना उसे, है ना, आपकी आस्तीन का सांप निकला वो। सेठ जी बोले कैसे? बोले चोर निकला वो, सामान चोरी करता है फैक्ट्री से डेली, कहीं जाके छुपा कर आता है, बाद में बेच के वो पैसा कमाता है। सेठ जी को गुस्सा आ गया। सेठ जी बोले अच्छा कैसे? बोले कि दिखाते हैं आपको। तो नेक्स्ट डे ऑफिस का काम ख़त्म करके वो जाने लग गया चुपके से कहीं पे। तो सेठ जी पीछे पीछे चल दिए। तो वो व्यक्ति गया, एक कमरा था गंदा सा और उसमें गंदा सा बॉक्स था, तो वो खोला और बंद करके जाने लगा। तो सेठ जी ने पकड़ लिया, बोला क्या चुरा के ला रहा है, इस बक्से में बंद कर दिया तूने चुरा के, चोर कहीं का, तुझे मैंने क्या समझा, तू क्या निकला, चोर निकला। तो बोला सेठ जी चोरी तो मैंने कुछ नहीं करा है। तो बोला चोरी नहीं करा तो यहाँ क्या करने आता है डेली चुपके से? तो बोला कि सेठ जी मैं ना बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ आपके साथ रह के, आपने इतनी तरक्की दिया, इतना धन दिया, तो मेरे मन में ऐसा है कि यार मुझे ना अभिमान ना है, अहंकार ना है इसका, इसलिए मैं डेली, है ना, ये फैक्ट्री से निकल के, ऑफिस से निकल के इस गंदे से घर में आता हूँ और ये जो बक्सा है इसको देखता हूँ। बोला क्या है कि जब मैं नया नया शहर में आया था ना, मैं इसी घर में रहता था और यही बक्सा लेकर आया था। इस बक्से में ना यही गंदे गंदे कपड़े थे जो मैं पहना करता था, फटे हुए कपड़े। तो मैं आता हूँ यहाँ देखता हूँ, है ना, ये कपड़े देखता हूँ, ये घर देखता हूँ और मैं अपनी औकात देखता हूँ कि यार पता है मैं ये हूँ, मैं ये, है ना, ये तो आपकी कृपा है सेठ जी जो मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, तो मेरी औकात में भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं आता हूँ। इसलिए भक्तों को भी ना देखना चाहिए कि अगर आज मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है ना, तो इसके पीछे है ना श्रील प्रभुपाद की कृपा है ना। उसको अपने वो दिन याद करने चाहिए बैठ के, है ना, कि जब वो अय्यासियाँ करता था, है ना, गंदी गंदी गालियाँ बकता था, है ना, मीट खाता था, लड़कियों के पीछे घूमा करता था,
है ना, वो दिन याद करना चाहिए और फिर एकदम से ग्राउंडेड हो जाना चाहिए कि यार मैं वो था। अगर वैष्णव ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता ना तो मैं वही था आज भी, है ना। और दूसरा क्या है कि गुरुओं की किसी न किसी गुरु के आश्रम में रहना चाहिए। आदो गुरु पदाश्रय, गुरु के आश्रम में रहना चाहिए। तो गुरु क्या है कि वो देखते रहता है ना, आपको मॉनिटर करेगा। जब आप उसको लगेगा कि यार ये हवा में उड़ रहा है ना, इसके पंख काटने पड़ेंगे थोड़े से, अब कुतरने पड़ेंगे, है ना, तो वो कुतरेगा, है ना। हम क्या, हम सोचते हैं कि अब जो है हम नहीं कर लेंगे, गुरु की क्या ज़रूरत है, तो फिर आप उड़ोगे, आप अहंकार की उड़ान उड़ोगे आप, है ना। बट गुरु के गाइडेंस में रहोगे, किसी काउंसलिंग सिस्टम है हमारा, है ना, उसमें रहोगे तो आपको बीच बीच में क्या है चेक करता रहेगा, काउंटर करता रहेगा, है ना, आपको गाइड करता रहेगा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, और कर दीजिए आप। तो हाँ, तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। विप्लव अब इस बार हर साल की तरह गोवर्धन में नहीं हो रहा है ना, इस बार इंडिविजुअल टेम्पल्स में हो रहा है। तो हमारा क्या गाजियाबाद मंदिर के साथ कंबाइंड है। तो गाजियाबाद मंदिर साहिबाबाद मंदिर का कंबाइंड कहाँ पे है, 27 अक्टूबर को, है ना। तो जिसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 300 रुपया है, 300 रुपया, 300 रुपया, 300 रुपया। 1 डे फेस्टिवल है ये, मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 9 PM, जिसमें 2 टाइम प्रसाद है, कीर्तन है, ड्रामा है और बहुत धुआंधार लेक्चर है, धुआंधार क्लासेस है। 4 महाराज आ रहे हैं वहाँ पे, है ना। भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, भक्ति अनुग्रह जनार्दन महाराज, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, गुरु प्रसाद स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, सुंदर गोपाल प्रभु जी, रामवत प्रभु जी, है ना। तो बहुत धुआंधार क्लासेस हैं, बहुत धुआंधार कीर्तन है, बहुत टेस्टी प्रसाद है ना, अच्छे भक्तों का संग है ना। तो आप लोग सभी रजिस्ट्रेशन करो जल्दी से जल्दी, वी हैव लिमिटेड सीट्स। किसको कांटेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए? इंटरेस्टेड तो सारे हैं ही ना। तो पिछली बार 40 रजिस्ट्रेशन हुए थे विप्लव में, है ना, 40। इस बार कितने हैं? 80, 80 रजिस्ट्रेशन, 60 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सब जाइए विप्लव में, है ना। दीपक प्रभु से कौन है कोऑर्डिनेटर इस बार? श्रेयांशु प्रभु हैं कोऑर्डिनेटर। श्रेयांशु प्रभु की क्या है, श्रेयांशु प्रभु से। हाँ प्रभु जी, ठीक है, मैं बात करता हूँ सुंदरपाल प्रभु से, आपके लिए एक बस अरेंज कराता हूँ। ठीक है प्रभु जी, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सो 2-3 अनाउंसमेंट है, आप कृपया करके बैठिएगा सभी लोग।